आवाज भी हमारी आप लोगों की प्रेम की और नमस्ता था कोई भी एटमॉस्फेयर के अंदर है जो आपके लिए है जो पावर यीशु के नाम से आपकी रोज़ तालियों से खुदा के मुहादा पाने की बजावा देंगे दोनों हाथ बुलंद करेंगे एक प्रेयर पॉइंट पर हम दुआ करेंगे कि हर तरह की लॉसेस और डैमेज की जो स्पिरिट है यानी जो नुकसान की स्पिरिट है जो आपके कोई भी स्पिरिट जो बिला वजह मेरी लाइफ में नुकसान का बारिश है रूह कुदूस की आग से जलकर भस्म हो जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं हर तरह की डैमेज और लॉस की स्पिरिट मेरी लाइफ से तहस नहस हो Come on, clap your hand and pray. Clap your hand and pray. दुआ करेंगे La katana bol tekene ve sanda. Inyanto mole ve zaki. Raza prakati ke piando. Ve prakata kaliata piando. La kata kaliata piando. Ve breke tekene ve sanda. Marza kala piando. Robo soto pianda. Le prakata piando. Dekene brando. Lekete branda. Ikiando. Lo prakata kaliata. Cariabos Tomoyata Pianda, Palabos Tekelevestando, Rakasate, Riveste Prakasini, Gandia Prakasete, La Prakata Piando, Legeste Kelevestando, Loco Soto Ilia Mataste, Eriamos Gobrante, Legrata Pianda Lavazete, Este Kelevestando, Rikete Branda, Lebrakata Piato Pianda. Come on, pray करेंगे. Repesete, Imbraka Pianda, Ligiata Braka Piato, Dogo Braka Pianda, Libraka Sakalebe Chanda, Zegene Brado Roboto, Lo Braka Piaste, Rigiasto Braka Sene, Lebraka Piando Roboto, Zegene Branda, Likinde Robote, Kadia Brasta Prakasete, Rekesete Brato, Lebraka Tabiando, Ligia Daravazete, Lekete Revestando, Loco Soto Prakasini, Mekete Branda, Lebraka Tabiando Prakasete, Roboto Pianda, Lebraka Tabiando Roboto, Oriabu Shikene Chanda. Come on, something is happening. कोई भी लॉस की स्पिरिट, डैमेज की स्पिरिट आपकी लाइफ से, आपकी डेस्टिनी से दूर हो रही है. Come on, pray. Kantariando Laboste, Ereves Jacarabastatu, Mondo Bracasete, Lebracata Vianda, Ribesto Bracasete, Carabos Kereves Sanda, Librando Bracasete, Cariabos Socorianda Lavazete, Zegere Sati, Tato Brande. Come on, pray. Tato Brande, Zegrajasta Carebo Tato. Come on, begin to pray. Azra की डैमेज की स्पिरिट, लॉस की स्पिरिट, बिना वजह आपके नुकसान करवा रही है, बिना वजह आपकी लाइफ में डैमेज करवा रही है. ब्रेक हो, डिस्ट्रॉय हो. Come on. Le bracasate, richiando, bracata brato, sekete leve shandi, zagada brato, rekete brato. Come on, pray. Clap your hand and pray. Something is happening. Laka sato, rekete brando, ribia katata brato, lekete leve shandi, masaka talamando, rekete Shandi, Zeke de Brasta, Korea Mashaka Ravasando, Reveza
In the name of Jesus. میں ڈگری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اور خداوند نے مجھے دوبارہ خوش کیا ہے کہ میں دوبارہ میسیج دوں آپ کو. The mystery of place کہ mystery of place کا کیا راز ہے, جگہ کا کیا راز ہے. پیدائش دیکھیں گے اس کا تیسرا باب 8 سے 10 تک پڑھیں گے. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا سنی, اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. اب خداوند نے ابراہیم کو پکارا اور کہا, تو کہاں ہے؟ Where are you? اپنے ساتھ والے پوچھے, تو کہاں ہے؟ Where are you? Mystery of location. Mystery of location. خدا دیکھ سکتا ہے, خدا کی آنکھیں دیکھتی ہیں, پر خدا آدم سے کوسچن کر رہا ہے, Where are you? Where are you? کہاں ہے تو؟ وہ باغ کی درختوں میں خود کو چھپایا ہوا اس نے, اور وہ جواب کیا دے رہا ہے, میں ننگا ہوں. خدا اس سے جغرافیکل کوسچن پوچھ رہا ہے اور وہ اپنا سٹیٹس بتا رہا ہے, اپنی کنڈیشن بتا رہا ہے کہ میں ننگا ہوں. یعنی خدا کوسچن کچھ کر رہا ہے, آدم آنسر کچھ کر رہا ہے, لیکن ہے وہ باغ میں. یہ ہم مسٹری کیا ہے, اس میں بہت ساری ایون آیت میں بہت سارے مکاشفے, میں کلام کو ڈائگریٹ نہیں کروں گا. میرا فوکس آج مسٹری آف پلیس ہے. جب تک آپ کو اپنی پلیس نہیں پتا, آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کوئی بھی پلیس خدا نے ہر ایک کو اس کی پلیس پہ رکھا. ہماری پیدائش کی جگہ, the place of birth is different, the place of training is different, and the place of commission is different. ہماری پیدا ہونے کی جگہ مختلف ہے, ہمارے تربیت پانے کی جگہ مختلف ہے. جہاں خدا ہمیں کمیشن کرتا ہے وہ جگہ مختلف ہوتی ہے. ہاللیلویا. میں ڈفرنٹ ڈائمینشن میں آج آپ کو پلیس کی مسٹری بتاؤں. وہ باغ کے اندر ہے, خدا دیکھ سکتا ہے, ایلوہیم گاڈ ہے, لیکن وہ خدا آدم سے پوچھ رہا ہے, Where are you? It means جہاں خدا نے اسے اپوائنٹ کیا تھا, جہاں خدا نے اسے رکھا تھا, وہ اس ایریے کے اندر, اس جغرافیکل ایریے کے اندر نہیں تھا, باغ کے اندر تھا. باغ کے اندر بھی کچھ لوکیشنز تھی, وہ باغ تھا, پر وہاں خدا کی پریزنس نہیں. سمجھ آ گیا؟ اس مسٹری کو میں ٹچ کروں گا, میں دوبارہ لوکیشن پر آؤں گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ پوزیشنز ہیں, کچھ پلیسز. خدا ہر جگہ موجود ہے, پر ہر جگہ خود کو ظاہر نہیں کرتا, مینیفیسٹ نہیں کرتا. خدا ہر جگہ موجود ہے, سمندروں میں, جنگلوں میں, پہاڑوں پر, غاروں میں, پاتال میں. اور داؤد کہہ رہا, میں تیری حضوری تو نفس کی کدھر جاؤں, جہاں بھی جاؤں تو ہے, پر خدا ہر جگہ خود کو ظاہر نہیں کرتا. اس لیے مسٹری آف پلیس, مسٹری آف لوکیشن آپ کو پتا نہیں چاہیے. مسٹری آف لوکیشن آپ کہاں ہے. ایون باغ کے اندر کوئی ایسے درخت تھے, کچھ ایسی جگہ تھی جہاں خدا کی پریزنس نہیں تھی. انہوں نے آدم کو, ہوا کو خدا سے چھپا لیا. بڑی دکھ کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہیں جو آپ کو خدا سے چھپا لیتی. خدا ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے, ہر جگہ رسائی ہے, پر اس نے اپنے آپ کو خود لمیٹڈ کیا ہوا. خود یوں کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو سٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے. وہ ہر جگہ نہیں جاتا, وہ ہر جگہ نہیں جاتا. نو, کچھ جگہ جہاں خدا اپنی پریزنس
ظاہر نہیں کرتا. تو آدم اور ہوا کے نالج میں تھا کہ یہ وہ ٹری ہے, یہ وہ لوکیشن ہے, یہ وہ درخت ہے جہاں خدا کی پریزنس نہیں ہے. خدا کو پتہ ہے لیکن وہاں خدا کی پریزنس نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جب آپ ان کی کمپنی میں ہیں, وہ انسان ہے, وہ روئے زمین پر ہے, لیکن خدا کی پریزنس آپ سے دور ہو جائے. یہ وہ درخت تھا جس نے آدم کو خدا سے دور کر دیا. یہ پھل کی بات نہیں ہو رہی ابھی, اپنی اس لوکیشن کی بات ہو رہی ہے. یہ لوکیشن خدا کی پریزنس سے آؤٹ تھی. چلے اور ایکسپلین کرتا ہوں. لکھا ہے یونا خدا کی حضوری سے بھاگ گیا. یونا خدا کی حضوری سے بھاگ گیا, یعنی پروفٹ یونا کو لوکیشن پتا تھی کہ کوئی ایسی سرٹن لوکیشن ہے where is no presence of God, جہاں خدا کی حضوری نہیں ہے. وہ نینوا جانے کے بجائے ترسوس چلا گیا. اسے پتا ترسوس میں خدا کی پریزنس نہیں ہے. He know the place. باغ عدن کے اندر ایسی لوکیشن تھی جہاں خدا کی پریزنس نہیں ہوتی. ترسوس ایسی جگہ تھی جہاں خدا کی پریزنس نہیں. کلیئر لکھا ہوا ہے یونا خدا کی حضوری سے بھاگ گیا. ایون سمندر کے اوپر خدا کے حضوری کی, خدا نے اس کو پکڑ لیا اس سے پہلے کہ وہ اس زون میں داخل ہو جہاں اس کی پریزنس نہیں ہے. اس لیے ہر جگہ خدا ہے اور ہر جگہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا. ہاللیلویا. یہاں وہ آدم سے کہہ رہا ہے ویئر آر یو, تو کہاں, ویئر آر یو, ویئر آر یو. آج آپ سے کوشچن ہے یہی, ویئر آر یو, تم کہاں پر ہو؟ کیا کسی ایسے درخت کے نیچے بیٹھے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ شاید درخت پر پھول بھی لگ رہے ہیں, پھل بھی لگ رہے ہیں, درخت بڑا گھنا ہے, پتے بھی ہیں, شاید یہ خدا کی حضوری ہے. نہیں, کچھ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں پر خدا کی حضوری نہیں. ہاللیلویا. پھل بھی نظر آئیں گے آپ کو, پھول بھی نظر آئیں گے آپ کو, پر خدا کی حضوری نہیں. ایک آیت ہے غلطیوں کے اندر کہ اگر تمہیں کوئی آسمان کا فرشتہ بھی آ کر کوئی ہم سے مختلف خوشخبری دے تو وہ فرشتہ ملعون ہے. دیکھیں گے ہم غلطیوں کے اندر دیکھیں گے آئی تھنک غلطیوں پہلا باب ہے یا تیسرا باب ہے. دیکھیں گا اگر تمہیں کوئی آسمان کا فرشتہ کوئی دوسری خوشخبری دے تو وہ فرشتہ ملعون. دیکھیے گا something is happening. خدا آج آپ کو اوریجنل پلیس پر لے جانے والا ہے. آپ کو اپنی پلیس پتہ چلے گی میری لوکیشن کیا ہے. کتنے اپنی لوکیشن جاننا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں جب تک آپ اپنی لوکیشن پر نہیں ہیں آپ, لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی, کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائی تو ملعون. آمین. اپنے آپ اپنے ساتھ والے کو اسپرچولی سینسٹیو ہو, اونچی بات میں بولے, بولے اسپرچولی سینسٹیو ہو جائے, بولے تم سینسٹیو نہیں, سینسٹیو ہو جاؤ. ہاللیلویا. اوکے, میں آپ کو شوق کرنے لگا ہوں. پڑھیے گا سلاطین 19واں باب, پہلا سلاطین 19واں باب, پاسٹر نیکسٹ میں دیکھیں گے 19واں باب. یہاں سٹوری ہے کہ وہ ایک عورت سے بھاگ گیا ہے مدر خدا ایریا. اخیاب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی اس نے سب نبی کی تلوار سے بدل کر دیا. اسی وقت کو لایا تو اسی وقت میں ایلیا کے پاس ایک قافلہ روانہ کیا اور کہا اگر میں اس وقت کی جان اس کی جان کی طرف نہ ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کرے.
जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। वैदे सभा में जो यहूदा का है आया और अपने खालिद को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजर रिश्ता में निकल गया और छुकाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है अब तो ऐ खुदा मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। और वो छुकाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा, उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखता उसके साथ कौन आया उसको रोटी दे रहा है? ऊंची आवाज में बोले, फरिश्ता आया, कह रहा उठ और खा। सफर बड़ा लंबा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। उसके सहारे द्वारों पर पकी रोटी और पानी की एक मिसल धरी है, सो वो खा पी कर बोले अपोस्टल वो आया है। आज इस चैप्टर में से मैं आपको वो मिस्ट्री देने वाला हूं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, खुदावंद आपको एक नया मिस्ट्री देने वाला है, आप हैरान होने वाले हैं। ये पढ़ते जाइएगा। अपने साथ वाले को पूछे, वेयर आर यू? बोले तुम कहाँ हो? बोले जब तुम अपनी सही जगह पर होगे तुम कामयाब होगे। ओके, यस, पढ़ते जाइएगा। बोले फरिश्ता 2 बार आया है। ओके, आगे पढ़ते जाइए। खुदा के पहाड़ हुरम तक गया और वहाँ एक गाय में जाकर टिक गया और देखो खुदा का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, क्या एलिया तू कहाँ, तू यहाँ क्या करता है? आमीन आमीन आमीन। रुकिएगा। खुदावंद आया है और खुदावंद कह रहा है, What are you doing here? तू यहाँ क्या कर रहा है? What are you doing here? इंग्लिश में बोले, अनपढ़। What are you doing here? अपने साथ वाले को कहे, What are you doing here? तू यहाँ क्या करता है? अब मिस्ट्री क्या है? आप शॉक हो जाएंगे सुन के। फरिश्ता आ रहा है हेवन से, मध्य खुदा एलिया को 1 बार नहीं 2 बार रोटी बना कर दे। कह रहा नजी पकड़, सफर बहुत लंबा, रोटी खा। वो फिर खा के सो गया। फिर आया एंजल, फिर रोटी दे रहा है, फिर कह रहा खा, एनर्जी पकड़। सफर बहुत लंबा है। 2 times एंजेलिक विजिटेशन हुई है, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा है, खुदावंद कह रहा है, What are you doing here? Can I give you revelation? Can I go higher? फरिश्ता खुदा की मर्जी के बगैर है। समझ आ रही? खुदा की मर्जी, फरिश्ते की मर्जी नहीं। मैं भी एंजल आए आपको चीजें प्रोवाइड करे, आपको दौलत दे, आपको ताकत दे, आपको बरकत दे। आपको पता ही नहीं कि वो एंजल किसका है। हेवन पर हर एंजल डिमोनिक नहीं है, कुछ एंजल आवारा है। समझ आ रही? आपको नहीं पता, वो सैर कर रहे हैं, लेकिन जब वो किसी भी मैन ऑफ गॉड को देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली। पर अगर उनमें सेंसिटिविटी नहीं है, वो डिजर्व नहीं कर सकते कि वो एंजल खुदा की मर्जी से आया या अपनी मर्जी से आया। मैंने एंजोलॉजी के अपनी टीचिंग में बताया कि फरिश्तों की आजाद मर्जी है। फरिश्ते अपनी मर्जी से आ सकते हैं आपके पास, बगैर खुदा के भेजे वो आपके पास है। यहाँ ये फरिश्ता आया है, रोटी 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन खुदा की मर्जी की एलिया उस मंजिल पर जाए। जैसे ही वो जाकर वहां पहुंचा है, अपना ब्रीथ के रखा है, सांस लिया, खुदा ने कहा, What are you doing here? Go back, वापस जा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। अगर वहां आप होते एलिया की जगह, आप सोच सर पकड़ के बैठ जाते, ऐसे फिर जरा एंजल आया रोटी दे गया कि वो गलत सी। फरिश्ते की मर्जी खुदा की मर्जी से फर्क है। अगर आप सेंसिटिव नहीं है, फरिश्ते आपको भटका सकते हैं। जोर लगाए जाएंगे। समझ आ रही है? प्रोविजन इस चीज का साइन नहीं है कि खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। प्रोविजन इस चीज का साइन नहीं है खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। प्रोविजन इस चीज का साइन नहीं है खुदा आपसे खुश है। चीजें मिलना, बरकतें मिलना इस चीज का साइन नहीं है जब तक आपका रिलेशन नहीं है खुदा के करीब। इस चीज का साइन नहीं है खुदा आपसे खुश है। हालेलुया। समझ आ रही है? यहाँ एंजल आया, 1 बार नहीं 2 बार उसकी जरूरत उसको दी है, पानी उसको दिया है, रोटी उसको दी है, खिदमत उसकी की है। पर वो एंजल अपनी मर्जी से आया है क्योंकि वो मैन ऑफ गॉड था।
एंजल खुदा की मर्जी से है। अगर वो सेंसिटिव ना होता, अगर वो सेंसिटिव होता तो वो वहीं से वापस होता है, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर वो अपने सेंसेस खो बैठा, फियर के अंदर, खौफ के अंदर, धमकी के अंदर वो अपने सेंसेस खो बैठा, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी खो बैठा। फिजिकल सेंसिटिविटी मौजूद, उसे भूख लग रही, लेकिन स्पिरिचुअल सेंसर ऑफ हो गया। समझ आ गया? एंजल फीड कर रहा है, एंजल ब्लेस कर रहे हैं, पर जब आप मंजिल पर पहुंचे आपने कहा What are you doing here? सुनो मेरे आपको समझ नहीं है। लापरा का साबिया तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, कोई भी फरिश्ता भरे आसमान से कोई और खुशखबरी दे, मलाम हो यीशु के नाम से, मलाम हो यीशु के नाम से, मलाम हो यीशु के नाम से। खुदा आपके स्पिरिचुअल सेंसर एक्टिवेट करे, खुदा आपको इम्तियाज की दे यीशु के नाम से, खुदा आपको रिविलेशन नॉलेज दे यीशु के नाम से, खुदा आपको अंडरस्टैंडिंग दे यीशु के नाम से। मैन ऑफ गॉड सर्टेन लेवल पर जब पहुंच जाते हैं, रैंकिंग जब उनकी बढ़ जाती है, उनके लिए खतरा भी इतना बढ़ जाता है। समझ आ गया? जब रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है, फरिश्ते मुश्ताक होते हैं आपसे मिलने के, आप मुश्ताक होते हैं फरिश्तों से मिलने के। इस फरिश्ते को अपॉर्चुनिटी मिली जब उसने एग्जॉस्टेड और टायर्ड, थके हुए और बदहाल मर्द खुदा एलिया को देखा, जिसका हेवन पर जिक्र होता था। एंजल उससे उसका क्या लेते हैं, ऑटोग्राफ लेने के लिए आ गया हेवन से, और उसकी खिदमत कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है। पर वो एंजल खुदा की मर्जी से नहीं है। जब वो मंजिल पर पहुंचा है, उसने अपना सामान रखा है, सांस लिया है, खुदावंद आ गया, उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, गो बैक, मैंने तुझे नहीं यहाँ भेजा, मैंने इस मंजिल पर, इस सफर पर तुझे भेजा। 2021 एक सफर है, 12 महीनों का एक सफर है, लाइफ एक सफर है, लाइफ एक जर्नी है, जिंदगी महीना, साल, एजुकेशन आप स्टार्ट करते हैं नर्सरी, प्रेप 1 2 अप टू एमएससी, एमबीए, मास्टर, पीएचडी, एक सफर है। लाइफ एक सफर की तरह है, मैरिज की, शादी एक सफर की तरह है। अब सिंगल है और शादी में एंटर हो गए, एक सफर शुरू हो गया। इस सफर में आपको खुदा की मर्जी चाहिए कि खुदावंद तू किस लोकेशन पर मुझे ले जाना चाहता है। जब तक आपकी राइट लोकेशन नहीं है, आपकी एलोकेशन नहीं है। समझ आ गया आपको? एजुकेशन एक सफर है, मैरिज एक सफर है, बिजनेस एक सफर है, लाइफ एक सफर है, साल एक सफर की तरह। हमने सफर तय करना है। दिसंबर तक बहुत सारे लोग इसमें चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग इस जहां से कुछ कर जाएंगे, बहुत सारे नए बच्चे पैदा होंगे, नए बेटे बेटियां आएंगे। ये सफर है, लेकिन इस लोकेशन में, इस जर्नी में, इस सफर के अंदर आपको खुदावंद की जरूरत, सेंसिटिविटी की जरूरत है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। Where are you? What are you doing here? आदम से पूछ रहा है, Where are you? किथे चला गया तू? मैं तेरे किथे रखा थी, किथे चला गया? हालेलुया। कुछ लोग जहां खुदा ने रखा है वहां को जगह छोड़ देते हैं। तो खुदा पूछ रहे, किधर चला गया भाई तू? मैं तुझे कुछ देने आया हूं, बात करने आया हूं, तू वहां नहीं है। आप अपनी बरकत मिस कर देते हैं जब आप राइट लोकेशन पर नहीं। कौन सी जगह? राइट लोकेशन पर नहीं होते। हर लोकेशन आपके लिए नहीं है। इवन करियर के अंदर, जिंदगी के अंदर जो पेशे चुनते हैं, प्रोफेशन चुनते हैं, उसके अंदर आपकी लोकेशन। मैं भी, खुदा ने आपको वकील बनाया, डॉक्टर नहीं, आपको साइंटिस्ट बनाया, पॉलिटिशियन नहीं बनाया, या आपको खुदा ने पॉलिटिशियन बनाया, आपको पास्टर नहीं बनाया। क्या है आप? करियर में आपकी लोकेशन है। मैं फुटबॉलर हूं, मुझे पता है ग्राउंड के अंदर एक ही टीम है, एक ही टीम को रिप्रेजेंट करती है, एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, एक ही शहर को रिप्रेजेंट करती है, एक ही इलाके को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ग्राउंड के अंदर 11 के 11 खिलाड़ियों की जगह फर्क होती है। कुछ लोग बैक पर खेलते हैं, कुछ लोग मिड में खेलते हैं, कुछ लोग
फॉरवर्ड खेलते हैं, कुछ लोग अटैकर होते हैं, कुछ लोग डिफेंडर होते हैं और एक कीपर होता है। अगर वो अपनी लोकेशन पर ना खेले, टीम मैच हार जाती है, टीम मैच हार जाती है, भले कितनी पावरफुल टीम हो। अगर अटैकर अपनी जगह पर ना खड़ा हो और अपने एरिया में ना खेले, टीम मैच हार जाती है। अटैक करने वाला कोई नहीं होता, अगर डिफेंड करने वाला, टीम दूसरी के गोल को रोकने वाला डिफेंडर अपनी लोकेशन छोड़ दे, टीम मैच हार जाती है। कीपर अगर गोल की जगह छोड़ दे, गोल हो जाता है। Where is your location? जब आप अपनी लोकेशन पर हैं, आप बता पाते करियर में क्या आपकी लोकेशन है? वो लोग शाइन कर रहे हैं दुनिया के अंदर। नाम देखते हैं टाइगर वुड्स का, रेनाल्डो का, बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर लोगों के नाम है, आर्ट के अंदर लोगों के नाम है, म्यूजिक के अंदर लोगों के नाम है। वजूहात क्या है कि वो उनकी लोकेशन, वो उनकी लोकेशन। आप अपनी लोकेशन देखें, मेरी लोकेशन कहाँ है? पॉलिटिक्स में है, रिलीजन में है, एजुकेशन में है, स्पोर्ट्स में है, किस डिपार्टमेंट में, किस फील्ड में, किस करियर में, किस प्रोफेशन में मेरी जगह है। जब आप अपनी राइट प्लेस पर जाएंगे, आप शाइन करना शुरू हो जाएंगे। हैंड ऑफ गॉड आप फील करेंगे, खुदा का हाथ आपके ऊपर होगा। अनॉइंटिंग, एंजल की सपोर्ट, असाइनमेंट के एंजल की सपोर्ट आपके साथ होगा। अपने साथ लोकेशन। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इसी सारी अपनी एमबीए की तालीम के बाद जब मैं एक दो जगह मैंने नौकरी के अप्लाई किया, सबसे पहले मैंने मुल्तान टाउन के एग्जाम हुए। टाउन के अंदर वहाँ नाज़मों का सिस्टम होता था, वहाँ जब टाउन बने शुरू में, वहाँ मैंने अपने पेपर दिए, मैंने टॉप किया पूरे मुल्तान में। मेरी जो टाउन हॉल की मेन सीट है, मुझे जॉब मिल गई। तो जब मैं असाइन जो ज्वाइन करने के लिए गया, तो वहाँ हमारे बडेरों का सिस्टम है मुल्तान के अंदर। मोनी शाह, आसम शाह, यूसुफ रजा गिलानी, ये सारे बडेरा निजाम। तो बडेरों ने मुझे अपने डेरे पर बुलाया थी, कृषि साहब आप हमें वहाँ मिले। क्या मामला है? कहते आपकी जॉब नहीं हो सकती, कहते आप कैश ले लें हमसे 4-5 लाख रुपया, ये हमने किसी और को दावत वो दी। मैंने कहा मैंने इंटरव्यू दिया, लेटर मेरे नाम आ गया। कहते ये आप नहीं कर सकते, हमने अपने किसी मजारे को ये नौकरी देनी है, प्यार से देनी है या मार से देनी है। क्या मतलब है? मैंने कहा नौकरी देनी है आप, मैंने इसके लिए अटेम्प्ट किया, मैं पास हूं, मेरा नाम लेटर है। कहते नहीं लेटर है, जो कुछ भी है इस दुनिया में कहां से, ये गवर्नमेंट है हमारी, पावर हमारी है। कहते ये 5 लाख रुपए ले और गुड बाय, ये हमारा लड़का है। मैंने कहा कितनी तारीख में? कहते मैट्रिक है। ये मैंने कहा आपने क्वालिफिकेशन लगाई थी कम से कम ग्रेजुएशन हो, तो ये तो मैट्रिक है। कहते जो भी हो, ये हमारी गवर्नमेंट है, हमारी पावर। समझ आ गया? जब आपकी लोकेशन ना हो, आप वहां ग्रो नहीं कर सकते। समझ आ गया? जब आपकी लोकेशन नहीं है, जब आप राइट लोकेशन पर आ जाएंगे, भले आपको फंड मिले ना मिले, भले आपके साथ सपोर्टर खड़े ना हो, हेवन आपको बैकअप करता है। पावर आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि हेवन ने आपको असाइन किया। हालेलुया। बड़े बड़े एक्टरों के आप इंटरव्यू सुन ले, बड़े बड़े हीरो बॉलीवुड हॉलीवुड इंटरव्यू सुने, वो आपको बताएंगे किस तरह वो आगे आए और आज टॉप पर है। जो हाथ क्या है कि खुदा ने हेवन ने उनको आर्ट और एंटरटेनमेंट के लिए हेवन से असाइन किया। तो सुन ले बड़े बड़े खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, बड़े बड़े और गेम्स में, वो उनकी लोकेशन है, वो उनकी लोकेशन। हालेलुया। जिम्बाब्वे का एक प्लेयर है, वो 100 मीटर में हर साल टॉप करता था, मुझे इसका नाम ये भी याद आ रहा, हर साल टॉप करता था। किसी दोस्त से मशवरा दिया, आप तूने 100 किलोमीटर की रेस नहीं जीतनी, 500 किलोमीटर पे चला जा। उसने मशवरा किया अपनी बीवी से, बीवी ने कहा कभी ना करना, कभी ना करना, ये तेरा एरिया है। दोस्तों से क्या, दोस्तों ने भी मना किया, उसको उन लोगों ने गलत मशवरा दिया और लगातार 4 साल से वो मेडलिस्ट था अपने एरिया के अंदर, 100 किलोमीटर जीता था, जो भी आता था किसी कंट्री का भी वो उसको हरा देता था।
لیکن انہوں نے اس کو پش کیا تو 500 کلومیٹر کی. جس دن وہ چیمپئن شپ میں وہ دوڑنا شروع کیا, ایک بچے نے اس کو ہرا دیا اور وہ رویا اور رویا اور رویا. ایک مین آف گاڈ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. اس نے بتایا, کیا بتایا؟ اس نے کہا دیٹ از ناٹ یور لوکیشن. یہ اس لیے خدا مجھے 100 کے لیے چنا ہے. آمین. وہ جو عزت تھی ملک کے اندر, جو نام تھا, جو اخباروں میں فرنٹ پیج پر اس کی تصویر سب ختم ہو. جب آپ اپنی لوکیشن مس کرتے ہیں کریئر کے اندر, آپ فلاپ ہو جاتے. کریئر کے اندر اپنی لوکیشن دیکھیں. کس فیلڈ کے اندر آپ کا نام, ڈاکٹر کے لیے بلایا, وکالت کے لیے بلایا, سیاست کے لیے بلایا, سائنس کے لیے بلایا, صفائی کے لیے بلایا, حکمت کے لیے بلایا, ٹیچنگ کے لیے بلایا, کس چیز کے لیے خدا نے آپ کو کال کیا؟ کریئر میں آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ خدا اس سے پوچھ رہا ہے what are you doing here؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ خدا آدم سے پوچھ رہا ہے where are you؟ کہاں ہے تو آدم؟ میں نے تجھے باغ میں رکھا ہے, باغوں کی باغ کی دیکھ بھال کرے, کاٹ چھانٹ کرے, گوٹی کرے, پودے لگائے, پھول دیکھے. تجھے میں نے یہ ٹریننگ کے لیے رکھا ہے, گارڈننگ کے لیے رکھا ہے, باغبانی اور نگہبانی کے لیے رکھا ہے. یہ تیری خدمت ہے, باغبانی اور نگہبانی. تو کدھر چھپتا پھر رہے؟ ہاللیلویا. اپنے ساتھ بولو what is your location؟ ہاللیلویا. اوکے, 7واں چیپٹر پڑھیں گے. پہلی 7 آیتیں پاس میں سب پڑھیں گے. پہلا سوال کیا سیکھ رہے ہیں؟ مسٹری آف پلیس. مسٹری آف پلیس سیکھ رہے ہیں. یس, پھر تم کو سمجھ آ رہی ہے میری پلیس کیا ہے. اوکے, پڑھیے. پہلا سلاطین 17 باب 1 سے 7 تک. اور ایلیا آپ سے کہا کہ خدا اسرائیل کے خدا کی یاد کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں, ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ بھی برسے گا جب تک میں نہ کہوں. اور خدا کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف نہ رک کر الکرات کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چک, اور تو اس نالے میں سے پینا, اور میں نے حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے. تو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا, کیونکہ وہ گیا اور کیرات کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا. اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے, اور وہ اس کے نالے میں سے پیا کرتا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا, اسے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی. آگے پڑھتے جائیں. ان کا یہ کلام اس پر نازل ہوا, اٹھ اور صدات کے ساتھ کو جا اور وہیں رہ. ایک میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے. آمین. بولے آمین. بولے لوکیشن, بولے پلیس, بولے مسٹری آف پلیس. خدا نے کبوں کو حکم دیا. خدا نے کبوں کو ایلیا کا نہیں بتایا. مس انڈرسٹوڈ نہ کیجیے گا. آج تک پاسٹر اس حوالے کو غلط میسج دیتے ہیں, جی خدا نے کبوں کو کہا ایلیا کو روٹی دو. نہیں, ایلیا کو روٹی دینے کے لیے کہا. خدا نے کبوں کو لوکیشن بتائی ہے, کریت کا نالا, اور ٹائم بتایا ہے. پڑھیں بائبل, غور سے پڑھیں گے, یہ حوالہ آپ کو سمجھ آئے گی. ایلیا کا نہیں ذکر کیا خدا نے کہ ایلیا کو روٹی دینی ہے. خدا نے کبوں کو لوکیشن بتائی ہے, اس لوکیشن پر تم نے جا کر کھانا رکھنا ہے, کریت کے نالے کے کنارے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کو ٹائم بتایا خدا نے, صبح اور شام, صبح اور شام. میں دوبارہ پڑھوں گا, آپ کو سمجھ آئے گی. ایلیا کا ذکر نہیں ہے. لوگ پاسٹر اس حوالے کو 72 سال سے غلط میسج سنا رہے ہیں کہ خداوند نے کلام کیا ہے ایلیا کو روٹی دو. ایلیا کو روٹی دینے کے لیے کہا. خدا نے کبوں کو حکم دیا ہے کہ اس لوکیشن پر روٹی لے کر جاؤ, اور ایلیا کو کہا ہے کہ اس لوکیشن پر جا کے ڈیرا لگا لے. زوردار تعلیم جائے گی. ہاللیلویا, زوردار تعلیم جائے گی. تو آپ کی روٹی, آپ کا رزق کسی لوکیشن پر ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اپنے ساتھ والے کو بتا رہے, تیری روٹی, تیرا رزق کسی لوکیشن پر ہے. روٹی پر آپ کا نام نہیں لکھا, کوئی اور اس لوکیشن پر چلا گیا وہ روٹی کھا لے گا. میں پروو کرتا ہوں, نوکری نکلی ہے, نوکری پر آپ لاتے ہیں اور آپ وہاں چھوڑ دیتے ہیں.
वहां रिस्क मिल रहा है आपको, कोई और लग जाएगा, क्या उसको रोटी नहीं मिलेगी? लोकेशन पर आप धक्के खाएंगे, 6 महीने नौकरी नहीं मिली, उस लोकेशन पर आपका रिस्क है। रिस्क पर आपका नाम नहीं लिखा, अगर रोटी पर आपका नाम लिखा होता तो वो कहते नहीं हमने उसी पर रखना है, वो कोई और कहेंगे छोड़ो भाग लो, कोई और काम करेगा, कोई और खिदमत करेगा, कोई और जॉब करेगा, हमारे पास टाइम नहीं, तुम बहुत छुट्टियां कर दो। लोकेशन दोबारा मैं पढ़ूंगा, आपको समझ आएगी। लिखा और एलिया तस्बी जो जल्लाद के प्रदेशियों में था, अखियाब से कहा हे खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। क्या ना कहे? मैं मतलब पास्टर जो मैन ऑफ गॉड था, खुदा नहीं, खुदा ने उसे अथॉरिटी दी कि तू हेवन को 3.5 साल के लिए लॉक कर दे और चाबियां जेब में डाल दे, जब तक तू नहीं खोलेगा आसमान नहीं खुलेगा। ये कहा खुदा, एलिया के कहने से आसमान खुलता और बंद होता। ओके, और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, यहां से चल दे, मतलब लोकेशन चेंज कर, मूवमेंट कर, ट्रांसपोर्टेशन हो, मूव कर यहां से और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है छुप जा। इस साल दुआ करनी है, मैं आपको प्रेयर पॉइंट दे रहा हूं, गॉड शो मी माई लोकेशन, लॉर्ड शो मी माई प्लेस। खुदा मुझे मेरी जगह बता, खुदा मुझे मेरी जगह बता, खुदा मुझे मेरी जगह बता। खुदा उसको बता रहा है, एग्जैक्ट एड्रेस बता रहा है कि कहां जा और कहां छुप जा, बस इतनी बात हुई है। आगे खुदा सीक्रेटली बर्ड्स के पास, रेवंस के पास, कवों के पास आराम से कलाम सीक्रेटली कर रहा है और उस नाले से पीना, और मैंने कवों को हुक्म किया है तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदा के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाले के पास जो यरदन के सामने रहने लगा, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को रोटी और गोश्त लाते और वो उस नाले में से पिया करता था। बोले आमीन। यदि दोपहर को फ्री था, दोपहर को वो विजिट कर सकता था, लोगों को जाकर नबूते कर सकता था, खुदा का पैगाम दे सकता था, बाकी काम कर सकता था, शावर ले सकता था, कपड़े चेंज कर सकता था, जो भी उसकी कोई भी मसरूफियत थी, सिर्फ वो उस वक्त करता था जब कौवों के आने का वक्त नहीं था। कौवे सुबह आते थे, कौवे शाम को आते थे, दोपहर को नहीं आते। टाइम एंड प्लेस, इस स्टोरी के अंदर 2 मिस्ट्रीज हैं। राइट टाइम और राइट प्लेस पर नहीं है, आप अपनी बरकत को मिस कर देंगे। अगर वो सुबह को चला जाता, मैं चैलेंज करता हूं कैसे उसको रोटी मिलती। लोग कहते हैं एलिया को बताया, एलिया क्या नहीं बताया? खुदावन ने कबों को टाइम और प्लेस बताइए। क्या बताइए? बोले मिस्ट्री ऑफ टाइम एंड मिस्ट्री ऑफ प्लेस। बोले खुदा ने कबों को जगह और वक्त का बताया। अगर एलिया शाम को मिस हो जाता, कौवे मिस कर देते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अपना दाहिना हाथ बुलंद करें, आंखें बंद करें, ऊंची आवाज में बोले, बोले लॉर्ड शो मी माय प्लेस, लीड मी टू माय प्लेस। खुदावंद इस साल जहां मेरे हिस्से की बरकत है, मेरे हिस्से का रिस्क है, मेरी रहनुमाई कर, मुझे वो जगह दिखा, मुझे उस जगह पर लेकर जा। लीड मी, गाइड मी टू माय प्लेस, यीशु के नाम से। जोरदार तारीफ है, जोरदार तारीफ है। मिस्ट्री ऑफ प्लेस, मिस्ट्री ऑफ प्लेस। एलिया का नहीं है, एलिया जाकर देखता सुबह के टाइम उसका नाश्ता मिस हो जाता, रात का जाता डिनर, एक नींद, दोपहर का लंच नहीं वो करता, सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम। और कहां? क्रेत का नाला। एलिया ने बताया उन्होंने एलिया को लेना है, उन्होंने कहा क्रेत के नाले पे चला जा, और एलिया को कहा तू क्रेत के नाले के पास एक गार है, वहां जाकर छुप जा, कभी तेरे लिए ले आएंगे, क्योंकि मैंने उनको लोकेशन बताई है। जब तू लोकेशन मिस करेगा तो ब्लेसिंग मिस करेगा। एक सीजन आया कि वो पानी वहां से सूख गया,
खुदा ने उसको नई डायरेक्शन दी कि अब तू सारपत की बेवा के पास चला जा। मैंने उसे हुक्म दिया है वो तुझे खाना देगी। बोले न्यू लोकेशन। अगर आप खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, आप अपनी अगली लोकेशन नहीं देख सकते। जहां फेवर ड्राई हो जाए, जहां रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, समझे आपका नाला सूख गया है, वो पानी, वो नदी सूख गई है जहां से आप ड्रिंक कर रहे हैं, अपनी जगह चेंज कर लें। जहां रिस्पेक्ट कम हो जाए, क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट कम हो जाए, ऑनर कम हो जाए, वो जगह छोड़ दे, वो जगह खुदा आपको चेंज कर रहा है। समझ आ गई? यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा जिस शहर में तुम्हें कबूल ना करे, जिस प्लेस, जिस लोकेशन पे तुम्हें कबूल ना करे, साइन क्या है? एक्सेप्टेंस, ऑनर। जहां तुम्हें इज्जत ना दे, जहां तुम्हें कबूल ना करे, पांव की गर्द गाड़ देना। वो लोकेशन तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इसी तरह करता हूं, जहां ऑनर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे पता मुझे मेरे लिए नहीं है। अगर मैं सर घुसाऊंगा मेरा नुकसान होगा। मैं सर घुसाऊंगा, वहां घुसनेगी, वहां सर फट जाएगा, नुकसान होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि वो जगह नहीं है। जब तक आप अपनी राइट लोकेशन पर नहीं है, आपके पास रिस्क नहीं है, आपके पास बरकत नहीं है। जब आप एक ही जगह, जहां रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, जहां ऑनर खत्म हो गया, आप सर घुसाएंगे, आपको डिप्रेशन मिलेगा। इसीलिए जब जिस नौकरी पर कंफ्यूजन शुरू हो जाए, दुआ भी की है, प्रेयर भी की है, फास्टिंग भी की है, आपके लीडर ने भी प्रे की है, मामला नहीं हल हो रहा, इट मीन खुदा आपकी लोकेशन चेंज कर। उसने कहा अब यहां से कूच करता ग्रेन के नाले से सारपत की बेवा के पास चला जा। आई एम टेकिंग यू टू द न्यू लोकेशन। मैं तुझे नई लोकेशन पर जा रहा हूं। आमीन। इसी तरह इस साल खुदा लोगों के घर का एड्रेस चेंज करने वाला है। कुछ लोगों का ऑलरेडी कर दिया है, कुछ लोगों का करने वाला है। खुदा आपको लोकल से हाई एरिया में ले जाने वाला है। खुदा आपकी लोकेशन चेंज करने वाला है। खुदा आपका लेवल चेंज करने वाला है। खुदा आपकी पोजीशन चेंज करने वाला है। खुदा आपके बिजनेस की कैटेगरी को चेंज करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से करेंगे फिर से हालेलुया। इस साल आपकी दुआ कि खुदा मुझे मेरी जगह पर ले जाए, या मेरी जगह पर। कुछ लोग गलत लोकेशन पर खड़े हैं, इसलिए वहां उसकी कोई इनकम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई बरकत नहीं है, क्योंकि वो रॉन्ग लोकेशन पर। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा कई बार बोला है चेंज कर देगा, चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। आप ठीक बनकर बैठे हुए हैं और वहां बुड़बुड़ा रहे हैं। इतनी दुआ करते इतनी बरकत मिले। इतनी एलिया से बड़े तो नहीं आप, एलिया से ज्यादा पावरफुल तो नहीं आप। अगर एलिया को वहां रोटी नहीं दी, उसकी जगह चेंज की है, तो आपकी रोटी क्यों नहीं चेंज करे? आपकी जगह चेंज करने में आपकी रोटी है, आपका करियर चेंज करने में। बात कर खुदा करियर की लोकेशन चेंज करवाता है, बात कर खुदा फिजिकल प्लेस चेंज करवाता है, बात कर खुदा स्पिरिचुअल प्लेस चेंज करवाता है। आमीन। आपको पता है आसमान पर आपकी लोकेशन है। जब आपकी आसमानी, गौर से सुनिएगा, लिख लेंगे पॉइंट। जब बंदे की आसमानी लोकेशन जिस्मानी लोकेशन से मैच ना करे, वो कामयाब नहीं होगा। दोनों लोकेशन मैच होनी चाहिए, प्रोफेशन में, करियर में, और इवन फिजिकली, ज्योग्राफिकली। अगर जो आसमान पर लोकेशन है जमीन पर नहीं है, वो कामयाब नहीं होगा। What is your location? Why are you suffering? कुछ चीजों में आप सफर कर रहे हैं, तंगी में हैं। Just pray, God lead me to my location. इब्राहिम को बरकत दी है, जगह चेंज की, उसने कहा अपने बाप के घर को छोड़ दे। क्या चीज चेंज करवा रहा है? लोकेशन। क्या चीज चेंज करवा रहा है? पीपल, लोग। लोकेशन चेंज होती है, लोग चेंज हो जाते हैं। लोकेशन चेंज होती है, लोग चेंज हो जाते हैं। लोकेशन। लीव द कंट्री, लीव द किंडरेंस, लीव द फादर हाउस। अपने बाप को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ दे। आई विल शो यू द प्लेस। मैं तुझे जगह दिखाऊंगा, मैं तुझे वो जगह दूंगा। लोकेशन चेंज कर। कितने लोग रेडी है लोकेशन चेंज?
खुदा आपको एलोकेट करना होगा, न्यू जगह पर एलोकेट करना चाहता है। कुछ लोगों को प्रोफेशन में चेंज करेगा, कुछ लोगों को लोकेशन में चेंज करेगा, कुछ लोगों का होम एड्रेस चेंज करेगा। आमीन। कितने रेडी हैं? तैयार है सब लोग? हालेलुया। मेरा एक सन दानियल है, खुदा ने उनको फेवर किया, कनाडा जा रहे हैं। कल वो बड़ा दुखी था, रोने वाला मुंह बना हुआ था। कल डैडी यहाँ मेरा दिल लग गया, जेल में मेरे काफी लोग हैं, मेरी फैमिली अब यहाँ बड़े हुए हैं, दिल नहीं कर रहा कनाडा जाने का। मैंने कहा खुदा तुम्हारा एड्रेस चेंज कर, खुदा तुम्हारी लोकेशन रिसीव करो, फेवर है, मिस्ट्री है लोकेशन है। खुदा किसी पर्पस के लिए आपकी लोकेशन चेंज कर। यहाँ बहुत सारे लोगों की लोकेशन चेंज होने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ से यूएस जाने वाले हैं, अगर वहां पे आप कामयाब हो जाए। यहाँ से बहुत सारे लोग जर्मनी जाने वाले हैं, कनाडा जाने वाले हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में खुदा उनको ले जाने वाला है। खुदा उनकी लोकेशन को चेंज करेगा। हालेलुया। लोकेशन चेंज करता है खुदा। लोकेशन के साथ कनेक्ट रहे। नहीं इधर ही बरकत दे, इधर ही बरकत दे, इधर ही नहीं। आप जिद ना करें, खुदा मिस कर देंगे, आप खुदा को मिस कर देंगे। बादल बादल एक ही मुल्क पर होते हैं, पर एक शहर पर बारिश होती है। कभी खबरों से सुनकर सीखा करें कि उधर बारिश हो रही है, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में नहीं हो रही। कभी पिंडी इस्लामाबाद वाले हमें टीवी पर देख रहे होते हैं, लाहौर बड़ी बारिश हो रही है, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं। लोकेशन मैटर करती है, कहां आपकी बरकत के बादल हैं। जब आप खुदा के साथ करंट होंगे, कनेक्ट होंगे, नेविगेशन में होंगे, खुदा आपकी लीडिंग करेगा। अब कौन सी जगह पर तेरी बारिश है, अब कौन सी जगह पर तेरे मददगार है। लिखा है खुदावन मेरा चौहान है, मुझे कमी ना होगी। आगे बढ़े। वो मुझे हर एक जगह में क्या करता है, बिठाता है, और वो मुझे नींद वो न उसे जानता है। Where is your water? कहाँ है तेरा पानी? तेरी ज़बूर लोकेशन के बारे में, जगहदार की लोकेशन खुदा को पता है, और वो लीड कर रहा है चरवाहे की तरह। खुदावन मेरा चौहान है, लीड कर रहा है। David go there, David go there, David go there। अब वो ज़बूर लिख रहा है कि मेरी लाइफ में खुदा ने हर मोड़ पर मुझे राइट लोकेशन दी। अगर आप अपनी हर बार लोकेशन को मिस कर रहे हैं, आप सफरिंग के अंदर, आपके पास पानी नहीं होगा, राहत के चश्मे नहीं होंगे, हरियाली चरागाह नहीं होगी, ग्रीनरी फ्रूट चीजें नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। बस जब खुदा कुछ लोगों का ट्रांसफर कर रहा होता है और वो दुआ करते हैं, खुदा सारा हमारा ट्रांसफर हो गया। आपको नहीं पता ट्रांसफर खुदा क्यों कर रहा है। खुदा आपको शिफ्ट कर रहा है, खुदा आपको न्यू जगह पर लेकर जा रहा है, नई ब्लेसिंग में लेकर जा रहा है। रेजिस्ट ना करें। इस साल खुदा कुछ लोगों को ट्रांसफर करने वाला है, उनकी लोकेशन चेंज करेगा। आमीन, आमीन। बीमारों वाला है उसके आगे क्या है, हर एक जगह में ले जाता है राहत के, और उससे आगे मेरी जान को बहाल करता है। आपको हाल नहीं है जब तक आप एक ही लोकेशन पर बैठे हुए हैं, बोर हो जाते हैं। आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही जगह, एक ही जगह, एक ही जगह, लोकेशन नहीं है चेंज। आमीन। बीवी अक्सर बोर हो जाती है, उसी में घुमाने वास्ते नहीं लाएंगे, मैं घूमना चाह रहा हूँ, लोकेशन से बोर हो जाते हैं। खवातीन को बड़ा होता है इरिटेशन, एक ही लोकेशन, एक ही रात, एक ही जगह, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। खवातीन हैप्पी रहती हैं, आप उनको घुमाते हैं। ऐसे ही है लेडीज, हाल देना रियल 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 है। लोकेशन आपको बोर कर देती है। हस्बैंड अगर लड़ाई से बचना चाहते हैं, अपनी वाइफ को घुमाएं, सैर करवाएं, लोकेशन चेंज करें, उसका मूड चेंज हो जाएगा। हालेलुया। जस्ट घुमा रहे हैं, ऐसे गाड़ी में ले लें, मोटरसाइकिल को ले लें, 2-4 गलियां घुमाएं, लोकेशन चेंज होगी, इसका मूड चेंज हो जाएगा। चेक करके देखें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लोकेशन जो है बड़ी मैटर करती है। डॉक्टर भी कहते हैं आप वो हवा चेंज कर रही, क्यों कह रहे होते हैं, लोकेशन मैटर करती है। मेंटली माइंड थक जाता है एक जैसी चीजें देखते। हालेलुया। आगे नेक्स्ट आयत में क्या कह रहा था, मुझे अपने नाम की खातिर यहाँ पे लोकेशन करता है।
صداقت کی راہوں پر لے جاتا، جھوٹ کے راستے نہیں، فراڈ کے راستے نہیں، صداقت کی راہ۔ اس نے کہا راحت کو زندگی میں آؤں۔ خدا خود میں ایک لوکیشن ہے، I am the way۔ جب آپ اس راستے پر چلیں گے آپ کی لوکیشن چینج ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ آج کل ہم واٹس ایپ پر لوکیشن بھیج رہے ہوتے ہیں، میری یہ لوکیشن، کچھ لوگ اپنا سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، فیس بک پر لوکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت فلاں ریسٹورنٹ کے اندر ہے، اس وقت ہم ایئرپورٹ کے اوپر ہے، اس وقت ہم بس اسٹاپ کے اوپر لوکیشن لگا رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ دوسروں کا بھی موڈ خوش ہو جائے، یہ میری لوکیشن دیکھیں گے، کچھ جیلس ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ لوگ آپ کی لوکیشن دیکھ کے جیلس ہو یسوع کے نام سے۔ خدا آپ کی اسپرچل لوکیشن چینج کرے یسوع کے نام سے۔ اوکے، یرمیہ پڑھیں گے، یرمیہ 18 واپس سے ایک ساتھ پڑھیں گے، چل رہے تھے یرمیہ 18۔ کتنے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ میں آپ کو ریفرنس پر ریفرنس دکھا رہا ہوں، ہر جگہ لوکیشن کا ذکر ہے۔ اب سب کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے، جس کی نہیں ہوئی وہ آپ ہے، تو آج آپ کی لوکیشن چینج ہونے والی ہے۔ پہلی آیت سے یرمیہ 18 کدھر جا؟ وہ کہہ رہا اپنے گھر بڑی دعا کر لی ہے، آج تیرے گھر سے تیری دعاؤں کا جواب نہیں داں گا، تیرے نہ گلا نہیں کروں گا۔ لوکیشن چینج کر، لوکیشن چینج کر۔ کہاں چلا جا؟ کمہار کے گھر۔ آگے آگے آگے۔ اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا، وہاں میں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تیرے گھر نہیں، کس کے گھر چلا جا؟ کمہار کے گھر میں چلا جا۔ آگے۔ جب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چوک پر کچھ بنا رہا ہے، اس وقت مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں گر گیا، تب اس نے اسے کیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خدا کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں نے اس کمہار کی طرح تجھ سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خدا فرماتا ہے دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں، اسی طرح اسرائیل کے گھرانے میرے ہاتھ میں ہو۔ آمین۔ میٹر ڈسکس کیا، سٹوری ڈسکس کی، مسٹری بتائی، کہاں؟ لوکیشن چینج کر۔ خدا میں کہا نہیں آج ادھر نہیں، تیرے گھر میں نہیں، پریئر کا جواب دینا، تجھے آج نئی بات بتانی ہے، کمہار کے گھر میں چلا ہے، ہو گئے، چینج یور لوکیشن۔ خدا اگر آپ ہوتے اس کی جگہ تو آپ کہتے خدا ادھر ہی بات کر، ادھر ہی سمجھا، ادھر ہی بتا۔ اس نے کہا نہیں، چینج یور لوکیشن۔ اپنے ساتھ بولو کہ چینج یور لوکیشن۔ آج نہ صرف پروفیشن میں آپ کو اپنی لوکیشن ڈھونڈنی ہے، ایون مائنڈ میں اپنی لوکیشن چینج کر رہے۔ اگر فزیکلی نہیں چینج کر رہے، محلہ گلی چینج نہیں کر رہے، علاقہ سٹی چینج نہیں کر رہے، مینٹل لوکیشن چینج کر رہے۔ مینٹل لوکیشن لیول چینج کر لیں، مائنڈ کا لوکیشن چینج کریں اپنے مائنڈ کی۔ ہیلیلویا۔ مائنڈ کی لوکیشن چینج کر لیں، مائنڈ کی لوکیشن چینج کر لیں۔ اوکے، ایک اور سٹوری دیکھیں گے، مرکز 8 باب، مرکز 8 باب، آخری سٹوری ہے میں کلوز کروں گا۔ مرکز 8 باب، مرکز 8 باب کریے۔ میں 22 میں ایسے 22 میں ایسے مرکز 8 باب 22 میں ایسے mystery of place, mystery of location. Yes. پھر وہ بہشتہ میں آئے، لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی مدد کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ اسے گاؤں کے باہر لے گیا۔ وہ اندھے کو پکڑ کے کدھر لے گیا؟ گاؤں کے اندر باہر لے گیا۔ یسوع نے وہ معجزہ نہیں دیا اس لوکیشن پر، کیونکہ وہ رانگ لوکیشن، وہ غلط جگہ تھی۔ یسوع مسیح نے اس کی لوکیشن چینج کی۔ اپنے ساتھ لکھو کہ خدا مجھے میری صحیح جگہ پر لے کر جائے۔ جب آپ دعا کریں، سال پریئر کریں، بیٹھے خدا کے حضور اپنی عبادت میں، پرسنل سنجیدگی میں اسے بتائیں میری صحیح جگہ کہاں، میں کون سی لوکیشن پر کریٹ بنایا گیا ہوں، مجھے اس لوکیشن پر لے کر جا۔ جب میں اس لوکیشن پر جاؤں گا میں اپنے لیے دوسروں کے لیے پیسے برکت کروں گا۔ اگر آپ لوکیشن چینج کرتے رہیں گے آپ کو پتہ نہیں لوکیشن کون سی ہے۔ پہلے خدا سے پوچھیں جس نے آپ کو بنایا ہے، یا اس بندے کو ہاتھ پکڑا لکھا گاؤں سے باہر لے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کی، اس لوکیشن پر، رانگ لوکیشن پر
मुआवजा नहीं हो सकता था। आपके कुछ मुआवजे नहीं होंगे जब आप रॉन्ग लोकेशन पर हैं। आपको रिस्क नहीं मिलेगा जब आप रॉन्ग लोकेशन पर हैं। आपके मददगार आपको विजिट नहीं करेंगे जब आप रॉन्ग लोकेशन पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। 3 मजूसी सोना मुरो और लोबान लेकर यीशु को चरनी में मिलने नहीं आए, वो यीशु को घर में मिलने हैं। कहां मिलने हैं? जब वो चरनी के अंदर है उसको चरवाहे मिलने हैं। क्या मिलेगा? जहां वो चरनी के अंदर है उसको चरवाहे मिलने हैं। आम जब हम टैब्लो करते हैं स्टेज पर गलती होती है, इसके अंदर ड्रामा बनाते हैं जब क्रिसमस का वो गलत चल रहा होता है ड्रामा, अक्सर जगहों पर कोई उसकी करेक्शन नहीं कर रहा होता। चरवाहे भी उसी टाइम आ रहे हैं और मजूसी भी उसी टाइम आ रहे हैं। बाइबल पढ़े, एक वक्त नहीं आएगा जब यीशु 3 महीने का है तब मजूसी आ रहे हैं। जब यीशु जब पैदा हुआ है चरवाहे आ रहे हैं। पढ़ ले, मैं पढ़ाता हूं, मती निकालेगा, क्लोज करेंगे हम पे। आमीन। आज के दिन के बाद राइट लोकेशन पर आपके मददगार हैं। क्यों मददगार नहीं आ रहे? क्योंकि आप सही जगह पर नहीं है। क्यों रिस्क नहीं आ रहा? सही जगह पर नहीं है। क्यों मुआवजे नहीं आ रहे? सही जगह पर नहीं है। आप गुड़गुड़ा रहे हैं, मेरी जिंदगी में मुआवजा कोई नहीं हो रहा, आप जगह गलत पर है। क्यों बरकत नहीं आ रही? रिस्क नहीं आ रहा, सही जगह पर नहीं है। क्यों मददगार नहीं आ रहे? सही जगह पर नहीं है। मत ही पड़ेगी, पकड़ना अब कीजिएगा। यस, सातवीं दो की सातवीं ऐसे पड़ेगा। एक बार है जिसने मनुष्यों को चुपके से बुलाकर उससे ये की कि वो तारा किस वक्त दिखाई दिया था और ये कह तूने बैतलहम को भेजा कि जब उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आप उसको सजदा करूं। वो बादशाह के पास कर रवाना हुए और जैसे सारा उन्होंने पूरे में देखा तब उनके आगे आगे चला, यहाँ तक उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। उस तारे को देखकर नहाए खुश हुए और उस घर में पहुंच। कहाँ पहुंचे हैं? ऊंची बात में, उस चरनी में किधर गए हैं? मजूसी किधर गए हैं? आप लोग ड्रामा बना रहे होते हैं, मजूसी चरनी में आ रहे हैं। बाइबल क्या कह रही है? मजूसी अंडरलाइन कर ले, बाइबल पढ़ा करें। मजूसी चरनी में नहीं गए, चरवाहे चरनी में गए हैं, मजूसी घर में गए हैं। टैब लोग गलत कर रहे होते हैं, बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े नामी बाइबल नहीं पढ़ते, वेखा वेखी लकीर के फकीर, ओ ने लिखा उन्हें लिखा उन्हें लिखा है। कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कभी नहीं बैठे खुदा के कलाम सा उसको देखा उसको देखा उसको देखा उसको देखा करना चाहिए। यहाँ भेदजाल है, अपनी तहकीक नहीं है, अपनी स्टडी नहीं है, अपनी रिसर्च नहीं है। सुना सुनाया, इधर कलाम सुना उधर सुना, इधर सुना उधर सुना दिया, कॉपी पेस्ट। मजूसी चरनी में नहीं गए, मजूसी घर में गए। चरवाहे चरनी में गए हैं। लूका 2 में स्टोरी है चरवाहे, क्योंकि चरवाहे शहर के बाहर थे, भेड़ों को चरा रहे थे। फरिश्तों ने सबसे पहली खुशखबरी चरवाहों को दी है, तो वो करीब थे, सिटी के बाहर थे, वो सिटी के अंदर आए, शहर के अंदर आए, बच्चे को चरनी के अंदर देखा है और कुछ नहीं दिया। वेले और मुंह में खड़ा आ गया बच्चे का। जैसे आज कई देखने आते हैं, आपका बच्चा पैदा होता है, कुछ नहीं देकर जाते, ऐ मुंह में और बड़ा सोना अपनी ने गया, दादी ने गया, नानी ने गई, कैसे चले जाते। यीशु को देखने आए हैं चरवाहे, एक टका नहीं दिया। यहूदी थे, यीशु यहूदियों में पैदा हुआ है, यहूदियों ने देखा सबसे पहले, लेकिन एक टका नहीं दिया। ये जो मजूसी है, ये गैर कौम, क्यों गैर कौमें आज अमीर है हमसे? ये मैं आपको खूबी बता रहा हूँ, गैर कौमें क्यों अमीर है? गैर कौमों ने उसको ब्लेस किया, गैर कौमों ने उनको माना, इवन बदलुओं ने यीशु को माना, अभी तक यहूदियों ने नहीं माना। गैर कौमों ने यीशु की ऑनर की है, उसको इनाम दिया है। समझ आ रही है? चरवाहे खाली आए हैं, खाली चले गए, नारे लगाते। आज भी चरवाहे खाली है, पास्टर देने के मामले में नहीं, लेने के मामले में। हालेलुया! कितने को समझ आ रही है? कहना गो है खुदा आपकी लोकेशन चेंज करे तो
अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, प्रेयर करेंगे, दोनों हाथ बुलंद करें, बच्चे साइड पर रखने, बाइबल किसी बुक पर, किसी जगह पर रखने, चेयर पर, और ये प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, पावरफुल प्रेयर करेंगे, दोनों हाथ बुलंद करेंगे, बोलेंगे आप यीशु के नाम से मैं अपने हाथों को यीशु के लहू में डिप करता हूं, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, इस साल तो मुझे मेरी राइट लोकेशन पर लेकर जा, जब मेरे मददगार हैं, जब मेरे जिंदगी रिज़्क है, जब मेरी बरकतें हैं, जब मेरे मौजे हैं, जो जगह तूने मेरे लिए तैयार की है, मैं उस लोकेशन में जाऊं, जब मैं ताली बजाऊं और दुआ करूं, तू ड्रीम्स में, ख्वाबों में, रोया में मेरी रहनुमाई कर, लोगों के जरिए मेरी रहनुमाई कर, मैं अपनी राइट लोकेशन पर सामने के साथ में एक साला मांगे रेवेश के साथी दोस्तों ब्राका से ला ब्राका का भियांगो केरिया दोस्त से ब्राका से माता का जा ब्राके ला ब्राका का ब्राके ये दे ब्रांडो आपका ब्राका से गाजा गाजा में दोस्तों से ला ब्राके सामने बाका सोटो